So, is the screen visible to you, teachers? Yes, ma'am. So, see, teachers, for your benefit, I got this uploaded on a website because so that you'll be able to get all the resources. Okay, you need not to ask anybody. Like sometimes when new teachers are there, they also need support. They want to have some documents. So all the things they have been uploaded over here. Okay, I have already shared the link with you, consultforacademics.in. When you go over there, you will be able to get all the things over here. I'll upload what all worksheets, what all things are there. You will be able to get all the things over here. Nowadays, we have been talking about feedback. Okay, so what you have to do is go to consultforacademics.in. Okay, and then you have to go to this feedback strategies. Okay, this feedback strategies. When you go there, I have given a definition of it, and after that, look here. यहाँ पर आएंगे other feedback strategies with examples, right? Other feedback strategies with examples. 2 stars and a wish. You have already done your 2 stars and a wish strategy. Okay, so here is the video, and here is the one sample. Okay, so what all you have already given some kinds of comments. आपने लिखे हुए हैं already. You have to post it. Okay, यहाँ पर आपको लिखकर you have to post it. Okay, clear? ताकि वो बाकी टीचर्स भी उसको एक्सेस कर पाए. It will be there on one place. Okay, ये तो आपको आता है already. You know it very well. Now, if I talk about traffic light strategy, this we have discussed maybe a few days ago. For that, examples are here. And again, you can post your reply here. जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक, I guess only 2 of you have posted. So here you can use this as a reference. आपके लिए template पहले बना दिया है. Use it as a reference, make it changes, and then make the changes in it and then post it. Okay? तो ये आप कर सकते हैं ना easily. ये तो आपने already कर. अच्छा, एक चीज और new जो आपके लिए. Look here. This I wanted to discuss with you basically. PME strategy. प्लस माइनस इक्वल्स. ये देखो एक बार जरा इसकी एग्जांपल. शिखा, कैन यू प्लीज रीड द प्लस वन प्लस पोर्शन. नेटवर्क इशू. यस मैम. हाँ, रीड द प्लस वन प्लस. Okay ma'am. Dear, after that name, I have noticed a great change in your presentation skill. You have started using advanced vocabulary in writing skills as compared to the previous performance in periodic test. So means हमने बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, we are not comparing one child's performance with the another child. Okay, रोल नंबर 1 ने पेपर कैसा किया है, रोल नंबर 2 ने कैसा किया है, 3 ने कैसा किया, उनको कंपेयर नहीं कर रहे. We are comparing the child with the child's previous performance, same child. कि हम एक बच्चे को ये कह रहे हैं कि बेटा पीरियोडिक टेस्ट में जो आपने किया था, उसके बाद जब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें आए तो सी चेंज इन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, और पहले से वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी यूज की है, एंड राइटिंग स्किल्स. मतलब उस बच्चे का उनको होना चाहिए ना कि हाँ, मैंने 3 महीने जब मैंने कंप्लीट किए स्कूल में, 2 महीने कंप्लीट किए, तब मैंने इतना सीखा. उसके बाद अब इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नाउ दिस इज देयर. तो आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हो? दिस इज अ काइंड ऑफ फीडबैक इन विच यू कंपेयर द चाइल्ड विद द his or her performance. Okay, so okay, this is plus. Plus होता है जब कुछ हम ऐड करते हैं. माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करते हैं. मतलब पहले से कोई चीज अगर अच्छी नहीं करी. ठीक है. So who is interested to read the second one? Minus. Volunteers. कौन पढ़ेगा? हिमांशी मैम, will you read? Yes. Okay, Minus. okay. In last test, you attempted 100% questions, but could not do this time. You need to work on your writing skills. You also forgot to label the diagrams that you did last time really well. तो आपको समझ में आ गया ना कि बच्चे ने अगर लास्ट टाइम आपके 20 क्वेश्चन आपने पूछे थे, बच्चे ने सारे कर लिए. इस बारी बच्चे ने सारे क्वेश्चन नहीं कर पाया, कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए, टाइम में भी ज्यादा लग रहा था, तो चाइल्ड हैज लेफ्ट अ फ्यू क्वेश्चंस. एंड लास्ट टाइम लेबल्स किया था डायग्राम्स को, इस बारी द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू लेबल द डायग्राम्स. मतलब ये क्या चीजें हो गई? माइनस. पहले से
माइनस जो लास्ट टाइम किया था बट इस बार ही नहीं किया। होते हैं कई बार कुछ बच्चे जो पहले से परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल? आपने अभी एग्जाम्स में ऑब्जर्व किया हो किसी बच्चे के बारे में? एनीवन? कोई भी आपको ऐसी चीज लगी होगी जो पहले बच्चे ने बहुत अच्छी करी थी पर दिस टाइम देयर इस बार ये चीज नहीं कर पाया? मे बी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, पहले बड़ा Yes, नीट। ma'am. हाँ बोलो। Yes, ma'am. During class, the students are able to do the story sums, but in the examination, they are unable to do any single question. हाँ, सो आप यू कैन राइट लाइक ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ कंपेयर करो, क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। Yes, ma'am. तो Yes, ड्यूरिंग ma'am. फॉर्मेटिव असेसमेंट योर प्रेजेंटेशन for the story sums it was commendable, but during this time examination you were not able to do it. It was not up to the mark. Okay, so ये आपका बच्चे का माइनस हो गया। तो उसके लिए जब आप माइनस करोगे तो you have to advise the child कि next time for this improvement is required. Okay, so okay, now anyone, Ankita ma'am, read the equals. Your performance is case-based question is still at the same level. Let's work on it, improve the same, and for that you are advised to revise the worksheet on case-based questions. हाँ, so इसमें क्या होता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं दोनों चीजें हो सकती हैं कि पिछली बार बच्चे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और इस बार भी बहुत अच्छी है, तो इक्वल लेवल है। ओके, एंड हो सकता है कि बच्चे ने पिछली बार भी अच्छा नहीं किया और इस बार भी अच्छा नहीं किया, तो वो इक्वल जिसमें आपको लगता है कि बच्चे ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की है, ऐसा कुछ ताकि आपने बच्चों को जो पिछली बार टेस्ट में एडवाइस किया हो कि बेटा नेक्स्ट एग्जाम में इसको ऐसे अटेम्प्ट करना और बच्चों ने फिर भी नहीं किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू शेयर करिए। इक्वल, इक्वल बराबर, बैलेंस्ड। हिंदी में जैसे मात्राओं को बताया था बच्चों को, तो अभी इस बार एग्जाम में बच्चों ने मात्राओं का ही बहुत गलत किया था उन्होंने। तो हाँ, उसमें आप लिखोगे कि पिछले आपके एग्जाम में आप की और की छोटी और बड़ी की मात्रा में, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि आपने वो गलती करी थी, इस बार भी आपने उसी चीज को दोहराया है, तो आपको इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाओ। ठीक है, और अब आप देखो ये जो इक्वल्स है ना, ये हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं ऐसा होगा। किसी का इक्वल, यहाँ पर इक्वल जो आ रहा है वो वहां पर हम कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। कहीं पर ये भी होगा कि अगर इक्वल लिखा है तो बच्चे ने पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था और इस बार भी बहुत अच्छा किया था, हम अप्रिशिएट भी कर सकते हो बच्चे को, है ना, कि इक्वल मतलब लास्ट टाइम आपने डायग्राम्स जो बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेबल्ड थी, और इस बार भी बहुत अच्छा किया है, वेल डन। तो इक्वल दोनों तरफ से आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके मैम, ओके मैम। हाँ, एनी वन ऑफ यू अभी कोई एग्जांपल दीजिए, रैंडमली एक एक एग्जांपल यू कैन गिव। प्लस की एग्जांपल कौन देगा अभी? प्लस आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनीबॉडी प्लस का एग्जांपल दीजिए। प्लस बेस्ड ऑन, हाँ जी शिखा बताओ। मैम राइटिंग स्किल्स में लाइक बच्चे पहले, जैसे कोई बच्चा है पहले नहीं लिख पा रहा है, सही से फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, आफ्टर दैट जब हमने दोबारा उनका टेस्ट लिया या फिर दोबारा कुछ कराया तो अब वो बहुत अच्छे से चीजों को लिख रहे हैं। मैम कर्सिव ले सकते हैं, कर्सिव में पहले उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी पर अब वो कर्सिव को इजीली कर पा रहे हैं। Good, very good. So you can frame it like during the last test, I noticed you were not able to write in cursive handwriting, but this time the handwriting was very well. I mean, you were able to write in a cursive format or cursive handwriting. So वो आपका plus point है। Anyone who will share the minus one? Minus? दीप्ति ने पहले बोल दिया है। Anyone else? आवाज नहीं आ रही है, कान गेट योर वॉइस। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नेहा मैम बताइए, नेहा मैम बताइए। मैम कुछ बच्चे थे जो पहले जो चीज कर लेते थे, आई मीन जैसे कि
मात्रा वगैरह भी स्टार्ट कराइए इसके बाद। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग तो मैं नीचे में लिखी ना। नहीं, वो माइनस में कैसे जाएगा? अगर कोई बच्चा स्टैंडिंग लाइन बना रहा है तो वो भूल थोड़ा ना जाएगा स्टैंडिंग लाइन बनाना। या जो आपने किसी बच्चे की परफॉर्मेंस में ऑब्जर्व किया हो। पहले तो हाँ मैम, जैसे वोवेल्स वर्ड्स जैसे थे 88, मतलब कुछ बच्चे जो पहले लिख ले रहे थे अब नहीं लिख पा रहे हैं। आप कैसे भूल गए? क्या हो गया अभी उनको? मैम मे आई? हाँ हाँ बताओ। यस मैम लाइक जैसे फर्स्ट जब हमने शुरू किया था 80 वर्ड्स एंड फिर हमने AG वर्ड्स कराए, तो दे आर एबल टू डू ए साउंड वर्ड्स। ओके, नाउ व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट साउंड वर्ड लाइक E जो भी कराया हमने, तो उन्हें ई में अभी उसको थोड़ा ग्रैब करने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मतलब AG तो वो इजीली कर लेते हैं, पर अब जो नेक्स्ट है उनको समझने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई शुरू में। वो इसमें माइनस वाले में नहीं आ पाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। माइनस इज अगर कोई बच्चे ने कोई चीज पहले, सपोज जैसे हम मात्रा की बात कर रहे थे, या हम हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, या हम सोचे कि क्वेश्चंस के आंसर्स लास्ट टाइम बड़े अच्छे से मेथोडिकली लिखे हुए थे नंबर डालकर, इस बार ही नहीं किया। जो काम बच्चे ने पहले किया है बट अब नहीं किया है, ऐसा कुछ अगर आप ऑब्जर्व किया है आपने। Ma'am, in my class, students were able to do before and after number. When I change the format, like 4 is dash between, मतलब they have to fill in the blanks at between, before and after 3. They are unable to do it. हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो that you were able to do the after and before numbers, but your performance went down in the exam just with the slight change of the format. Okay, so make sure you read it properly with the format, and practice is required for that. So this is how you can do. Okay, तो इक्वल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इक्वल्स प्लस में भी हो सकते हैं, इक्वल्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं। कि बहुत अच्छा किया। एनीवन हु गिव द एग्जांपल फॉर द इक्वल्स, वो तो बहुत सारे कोई भी दे सकता है इक्वल्स। कोई एक बच्चे का टारगेट करो कि इस बच्चे ने पहले भी ऐसा किया था, अभी भी ऐसा किया। अंकिता ने पहले बताया है, बट स्टिल आप एनी वन ऑफ यू। कोई एक बच्चे का सोचो, पेपर लेके आओ, माइंड में इमेज लेके आओ उसकी, तब आपको याद आएगा कि बेटा पहले भी बोला था, पहले भी ऐसे किया था, फिर समझाया, फिर ऐसे किया। वो वाला एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर। सोचो जरा। Can I give in Hindi? Most हाँ, probably the students are doing the same mistake in Hindi. छोटी ई की मात्रा और बड़ी हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। Okay. Okay. In addition, I can do it. हाँ, Students are doing the same problem, facing the same problem when we are doing addition. They are unable to add the carry one. हाँ, yes. They are unable to do carry. हाँ, Most of तो आप कहोगे कि लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि कैरी फॉरवर्ड को ऐड करना है, वो फिर से गलती है, अब आपने इस एग्जाम में भी फिर से कर दी है। मींस दैट यू आर एट द सेम लेवल। अब इसको कोई पॉजिटिव में बताए, एनीवन हु कैन टेल मी द सेम इन पॉजिटिव, लाइक पिछली बार भी बहुत अच्छा किया एंड दिस टाइम आल्सो। सुनील को मैं नहीं अलाउ करूंगी, नो ही इज वेरी लेट। सुनील कुमार से। In my class, students know the answer. If I speak, I translate that question in a Hindi language. They are able to answer the question, and still they are able to answer that question if I translate that particular question in Hindi language. But so that again that is the question in English and understand themselves. Right. So this comes in equals, but again this is where we need to improve their performance. Okay. Yeah. Now anything good, anything positive, if you can share anything positive. कोई ऐसा पेपर अपने माइंड में लेके आओ जो बहुत ही, जिसने अच्छा परफॉर्म किया, तब आपको समझ में आएगा। देखो, सोचो, think about it. Bahuvi understood the story so easily. She is up to the mark in the classroom also, and she did the wonderful job in the examination.
she read the question, understood the question and solved the question easily. और कुछ स्पेसिफिक? Specific regarding addition I took the नहीं I mean आपके किसी बच्चे सोशल साइंस का बताओ ना, तुम जिस सीनियर क्लास का सोशल साइंस का, उसके बारे में सोच के बताओ. yes I can ask in the classroom they are easily calculate the population. क्लास के नहीं एक मिनट, लिसन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि you see in many countries also we have stopped comparing one child's performance with another child. Okay, like अगर आपके क्लास में 15 बच्चे हैं तो आप एक दूसरे की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करेंगे, पर उस बच्चे की अपनी परफॉर्मेंस को उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ रिव्यू करेंगे. उस चीज के लिए स्ट्रैटेजी है कि बेटा मैंने आपका पेपर चेक किया, इंग्लिश का ये आपका लास्ट मई का पेपर है, ये आपका इंग्लिश का सितंबर का पेपर. इसमें आपने लास्ट टाइम स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करी थी, इस बारी देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो ये आपका क्या हो गया? प्लस. ठीक है. एंड लास्ट टाइम यू वर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चन किए थे एंड यू यूज्ड गुड वोकैबुलरी आल्सो. और इस टाइम पर आपने इतना इनोवेशन नहीं दिखाया है पेपर में जितना लास्ट टाइम दिखाया था. तो ये क्या हो गया आपका? माइनस. आपने उस बच्चे को फीडबैक दिया. और उसके बाद में है इक्वल्स. इक्वल्स में आप देखिए कि अगर आपका सोशल साइंस का सपोज कि लास्ट टाइम भी, अगर मैं माइनस में बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम भी आपका जो बेटा मैप वर्क था वो आपने अच्छे से पेंसिल से करना था, बट यू हैव डन विद पेन. ठीक है. और इस बार भी आपने पेन से कर दिया. तो आपने जो गलती पहले बार करी है इस बार भी आपने रिपीट कर दी है. ठीक है. तो ये क्या है आपका? इक्वल्स. तो अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में बता रही हूँ कि लास्ट टाइम आपका ना मैप का जो प्रेजेंटेशन था इट वाज वंडरफुल एंड दिस टाइम आल्सो इट इज ग्रेट, राइट? तो वो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव में इक्वल्स आएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. yes sir. तो आपको इस तरीके से ना, ये आपके लिए कि अगर आप एक एक बच्चे से उसका पेपर डिस्कस करते हो तो ऑलवेज यू शुड हैव 3 पॉइंट्स विद यू. ओके. तो आप बच्चे को बोलोगे, आप अपने, क्योंकि हमारे पास कई बार होता नहीं है, हम बच्चे का पेपर लिया है, बच्चे को क्या डिस्कस करें, बच्चे को हम क्या समझाएं कि तुम्हारे पेपर में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्या है. तो उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं ना. ठीक है. एनी टीचर हिंदी में बताइए जरा, कोई भी मुझे जरा हिंदी का पेपर के अकॉर्डिंगली ये तीनों पॉइंट्स बताओ. अच्छा एक मिनट, जब तक कीर्ति मैम न्यू है ना अभी, कीर्ति मैम जरा इमेजिन करके बताओ मुझे कि एक बच्चे का सपोज पेपर है, आप ही के बच्चे का पेपर है, बीइंग अ पेरेंट, राइट? आपका बच्चे ने मई में पेपर दिया, उसके बाद आपके बच्चे ने सितंबर में द चाइल्ड अपीयर इन द एग्जाम. नाउ व्हाट विल यू डू फॉर द पेपर कि बेटा ये आपने अच्छा किया, ये आपने पहले से नहीं अच्छा किया, ये आपका सेम सेम है. बताना जरा, फीडबैक बताओ. टेल मी द फीडबैक. एक पॉइंट बता दो, चलो. टेल मी 1 पॉइंट. आवाज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट. अगर चिल्ड्रन मतलब पेपर मिस्टेक्स ज्यादा करता है तो उसकी हम मिस्टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको ना ना बताएंगे. ना ना, आपके अपने बेटे का नाम बताओ, बच्चे का नाम बताओ सर. और इसका क्या? तो ओरिस का आपने मई का पेपर देखा, सपोज इंग्लिश का, ओके, एंड ईवीएस आप लेती, सोशल साइंस लेती हैं, तो ओरिस का सोशल साइंस का पेपर देखा, एंड देन ओरिस का पेपर आपने हाफ ईयरली का देखा, राइट? तो आप उसकी इवेल्युएशन करके क्या बताते हैं कि व्हाट वाज द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट एग्जाम एंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस इन दिस एग्जाम. 1 मिनट है आपके पास, जल्दी बताओ. Yeah. If you want to take time, anyone who would like to come and share, anybody. फिर मेरे को तीनों पॉइंट्स का बताइए वैल्यूएशन. एनीबडी, किसी भी एक बच्चे का पेपर कंपेयर कर लो. एक एनी रियल कह रही हूँ, इमेजिन करने को बोल रही हूँ. रियल एक ही बच्चे का जो पेपर आपकी क्लास में आप पढ़ाया है आपने, एक किसी भी बच्चे का पेपर कंपेयर करो, 3 पॉइंट्स आपको लेने. Think ma'am will we change 2 children? नहीं, यही तो मैं मना कर रही हूँ. 2 बच्चों को तो कंपेयर करना ही नहीं है. यू कैन नॉट.
आप अपने दोनों बच्चों को भी कंपेयर नहीं कर सकते। और इस तुमने सोशल साइंस का अच्छा किया है, बड़े वाले को बोलो तुमने अच्छा नहीं किया है, वो नहीं। एक ही बच्चे की परफॉर्मेंस को, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई से कि आपका पिछला लेसन प्लान, अभी वाला हम लेसन प्लान आपकी डिस्कस किया मैंने, तो सपोज मैं आपका नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करती हूँ एंड लोगों में शिखा के एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लाइक दिस टाइम आई अप्रिशिएटेड शिखा, यू डिड वेल, एंड मैं बोलूंगी शिखा मैम लास्ट टाइम you तो inserted pictures also, and this time you have not inserted any kind of picture, any kind of links over there, so that will become minus. Difference. Okay, and if I say Shikha ma'am, last time you did not mention the learning outcomes, but this time you clearly mentioned the learning outcomes, वो क्या हो गया? Positive. Plus. Okay, and if I say कि last time also you highlighted academic vocabulary and you integrated with the real life, and this time also you did it, so वो क्या है? Equals. So this is how paper में you have to give that kind of feedback to your children. आज ये सोचना और you have to एक एक ड्राफ्ट करके भेजना, इसी पर भेजना, you have to, I'll share the link, इसी पर भेजना इसमें. Okay. Okay. So this is a good strategy. बताओ जरा, do you agree with that or not? Comparing two children is good with each other, or comparing the child's performance with the previous performance is good. Comparing the child in his or her previous performance. है ना? अच्छा, अगर आप ही को ये बोल दें कि आपके घर में कोई बोल दे कि तुमने यार कल तो चाय बहुत अच्छी बनाई थी, आज तुमने पत्ती तेज डाल दी है, वो आप ही की परफॉर्मेंस होगी ना? तो एक दिन की 4-12 की चाय में ही हो जाता है ये तो वेरिएशन. अच्छा, तो अगर आपको ये बोले कि अगर अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये बता रही हूँ, इफ एनीबडी सेज ओके ये जो आज सब्जी बनी है ना, तो ये पहले से बहुत अच्छी बनी है, बट तुम चाय में थोड़ी सी चीनी डालना भूल गई थी, और चपातियां जैसे तुम बहुत अच्छी बनाती हो आज भी बहुत अच्छी बनी है, तो ये तीनों पॉइंट हो गए आपके प्लस माइनस इक्वल्स. तो ये आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं. तो इफ योर हस्बैंड सेज लाइक चाय तुमने अच्छी नहीं बनाई है, मम्मी की चाय पीकर देखी है कभी, मम्मी की चाय कितनी अच्छी होती है, ठीक है? और फिर अगर वो आपको ऐसे करके बोले तो आप बोलोगे कि मम्मी को ही बोलो वही चाय बनाएंगी, मैं नहीं चाय बनाऊंगी अगली बार से. होता है ऐसे? टेल मी, होता है कि नहीं? तो बताओ अभी आपको परफॉर्मेंस, हाँ, तो डोंट कंपेयर द परफॉर्मेंस विद ईच अदर. उसी की परफॉर्मेंस के बारे में बताओगे तो उसको ठीक लगेगा. समझ आ गया अब? Yes, ma'am. Yes. हाँ, अब ये इसमें यहाँ पर उस, हाँ, रिव्यू दे देना. हाँ, सपना मैम को ये बातें ज्यादा समझ में आती हैं, है ना? कम से कम आप भूलोगे तो नहीं ना, कम से कम आप भूलोगे तो नहीं. ठीक है. सो हाँ, अब आपको मैंने पूरी एग्जांपल बता दी है, तो अभी आप इसकी रिव्यू ऐसा वाला लिख के भेजना यहाँ पर, ठीक है? इन दिस यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, इन हिंदी और इन इंग्लिश. संस्कृत आती है, जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, जापानीज आती है, इसमें लिखो, ठीक है? चलो, ओके, बाय.